السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز شہر نامے کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ گجرانوالہ میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کی نارووال میں کارروائی۔ چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ریاض نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم چائلڈ پورنوگرافی کے عالمی گروہ سے رابطے میں تھا۔ اوچھ شریف میں چوروں نے ایک ہی رات میں 3 دکانوں کا صفایا کر دیا۔ پولیس چوروں کے آگے بے بس، آئے روز چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہونے لگیں۔ چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو ون نیوز نے حاصل کر لی۔ منڈی بہاؤالدین میں پولیس کی کارروائی۔ بین الاضلاع کار چور رفیع ڈکیت گینگ کے 4 ارکان سرغنہ سمیت گرفتار۔ قبضے سے 1 کروڑ روپے مالیت کی 8 مسروقہ کاریں، 10 لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ برآمد۔ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی زیر صدارت ہاکی اسٹیڈیم میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اور دیگر ریونیو افسران کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران نے موقع پر مسائل سن کر ان کے حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اور کروڑ لال ایسن شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار، شہریوں میں شدید خوف و ہراس۔ اسپتالوں میں ویکسین ختم ہونے سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق۔ شہر نامے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو لیے چلیں گے گجرانوالہ میں، جہاں پر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے نارووال میں کارروائی کرتے ہوئے چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ریاض نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے نارووال میں کارروائی کرتے ہوئے چائلڈ پورنوگرافی میں ملوث ریاض نامی نوجوان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق برازیل کی حکومت نے ملزم ریاض سے متعلق معلومات پاکستان سے شیئر کی تھیں، جس پر ایف آئی اے نے سائبر کرائم ونگ نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم ریاض کو نارووال سے گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے سائبر کرائم نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم ریاض کو نارووال سے گرفتار کیا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ ملزم سے 600 سے زائد بچوں کی فحش ویڈیوز برآمد کر لی گئی ہیں اور ملزم کا لیپ ٹاپ اور دوسری ڈیوائسز پنجاب فورینسک لیبارٹری بھجوائی گئی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم چائلڈ پورنوگرافی کے عالمی گروہ سے رابطے میں تھا۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا نے کہا ہے کہ پولیس نے بین الاضلاعی کار چور رفیع ڈکیت گروپ کے 4 ملزمان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان نے کے قبضے سے 1 کروڑ روپے مالیت کی 8 مسروقہ کاریں، 10 لاکھ روپے نقدی، 10 لاکھ روپے کے مالیاتی پرائز بانڈ اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید علی رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ منڈی بہاؤالدین گجرات اور ضلع جہلم میں روزانہ کی بنیاد پر نامعلوم ملزمان مرغی فارم سے نکلنے والی گاڑیوں کو لوٹ کر گاڑی، نقدی اور انڈے چھین کر لے جاتے تھے اور ڈرائیور کو کسی ویران جگہ پر پھینک دیا جاتا تھا۔ وقوع جات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایس او پی اور انویسٹیگیشن طارق سکھیرا کی سربراہی میں ڈی ایس پی سی آئی اے عامر شاہین گوندل کو خصوصی ٹاسک دیا گیا، جنہوں نے بین الاضلاعی رفیع ڈکیت گینگ کے 4 ارکان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1 کروڑ روپے مالیت کی 8 مسروقہ کاریں، 10 لاکھ روپے نقدی، 10 لاکھ روپے کی مالیاتی انڈے اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈی پی او علی رضا نے بتایا کہ ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ تھانہ گجرات ضلع منڈی بہاؤالدین، تھانہ صدر کھاریاں، تھانہ صدر سرائے عالمگیر، تھانہ سٹی سرائے عالمگیر ضلع گجرات اور تھانہ چوٹلا ضلع جہلم کے علاقے میں درجنوں وارداتیں کر چکے ہیں۔ اور اب آپ کو پاک پتن لیے چلیں گے، جہاں پر نادرا آفس میں کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ آپ کو آگاہ کریں کہ بے فارم کے حصول کے لیے بچوں کے والدین نادرا کے ایک ہی کاؤنٹر کے باعث صبح سے شام تک ذلیل و خوار ہونے لگے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ پاک پتن میں نادرا آفس میں نادرا انچارج کی نااہلی کے باعث شہر اور دیہات کے لیے ایک ہی کاؤنٹر قائم ہونے کے باعث زیر تعلیم طلباء و طالبات کے وظیفے کے اجرا کے لیے بے فارم کا حصول ناممکن بن چکا ہے۔ شہر اور دیہات کے صارفین کی تعداد
تحقیقات کے مطابق نادرا انتظامیہ نے الگ الگ پوائنٹ پر بے فارم کی کاؤنٹر قائم کرنے کے بجائے ایک ہی آفس میں کاؤنٹر قائم کر کے کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی اور خواتین اور مرد صارفین کو لمبی قطاروں میں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، جس سے کورونا پھیلنے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ صارفین نے بتایا کہ نادرا اہلکار بے فارم کے نارمل فیس کے بجائے زبردستی ان سے 2100 روپے ارجنٹ فیس وصول کرتے ہیں اور سفارشی افراد کو بغیر قطار بے فارم بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اب آپ کو لے چلیں گے کروڑ لال عیسن شہر، جہاں پر آوارہ کتوں کی بھرمار سے شہریوں میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ آوارہ کتے سارا دن شہر کی سڑکوں پر پھرتے رہتے ہیں اور گزرنے والے شہریوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ کروڑ لال عیسن شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے شہروں میں شدید خوف و ہراس ہے۔ آوارہ کتے سارا دن شہر کی سڑکوں پر پھرتے رہتے ہیں اور گزرنے والے شہریوں کو کاٹ لیتے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ویکسین بھی نایاب ہے اور شہری باہر سے مہنگی ویکسین خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ دوسری طرف میونسپل کمیشن کی جانب سے شروع کی جانے والی کتا مار مہم بھی ناکام ہو چکی ہے، جس پر شہریوں نے اعلی حکام سے نوٹس لے کر شہر سے آوارہ کتوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری آوارہ کتوں کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ اور اب رخ کریں گے ماچیوال کا، جہاں پر میاں آصف محبوب کے والد میاں مقصود احمد ریاض کے بھائی میاں محبوب احمد ریاضی مرحوم کی چہلم کے ختم شریف کی تقریب میں رحمان ٹاؤن ماچیوال میں منعقد ہوئی، جس میں کثیر تعداد میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ ممتاز عالم دین فضل رسول شاہ نے فلسفہ موت و حیات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آج کے پرآشوب دور میں ہم موت کی تیاری کو بھول چکے ہیں اور عارضی دنیا کی رنگینیوں کو کھو کر اپنے اصل مقصد سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں تاکہ وہ اپنے والدین کی حقیقی معنوں میں خدمت کریں۔ اور اب رخ کریں گے چنیوٹ کا، جہاں پر ڈپٹی کمشنر محمود ریاض کی زیر صدارت ہاکی اسٹیڈیم میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں کہ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کی زیر صدارت ہاکی اسٹیڈیم چنیوٹ میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اور دیگر ریونیو افسران نے بھی شرکت کی۔ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران نے موقع پر مسائل سن کر ان کے حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ عوامی مسائل کا فوری حل اور ان کے انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ڈپٹی کمشنر مسائل حل کرنے پر لوگوں نے ریونیو عوامی خدمت کچہری کو حکومت پنجاب کا احسن اقدام قرار دیا۔ اور اب رخ کریں گے بوری والا کا، جہاں پر حکومت کی جانب سے بھٹوں کو بند کرنے کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ بھٹا مالکان اور محکمہ ماحولیات کی ملی بھگت سے حکومتی احکامات کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے اسموک کے خطرات کے پیش نظر بھٹوں کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن تو جاری ہوا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 2 ماہ بھٹے بند رہیں گے۔ مالکان کی جانب سے تمام بھٹے بند کر دیے گئے تھے، لیکن محکمہ ماحولیات کی جانب اور ملی بھگت سے روایتی بھٹوں پر صرف بلور لگا کر دوبارہ چلوا دیا گیا، جس کی فوٹیج میٹرو ون نیوز کو موصول ہو گئی۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ بھٹے کا دھواں کس طرح اسموک پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ شہریوں نے تحصیل انتظامیہ اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے غیر قانونی طریقے سے چلنے والے بھٹوں کو فی الفور بند کیا جائے تاکہ اس سے پیدا ہونے والے موذی اثرات سے بچا جا سکے۔ اور موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی لیاقت پور کے شہریوں نے سردی کی شدت کم کرنے کے لیے مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے۔ جی، موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی شہریوں نے مختلف فوڈ پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ گرل فش کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کے بعد شہری من پسندہ گرل فش خرید رہے ہیں۔ ہم یہاں سے مچھلی کھانے آئے ہیں تو بچوں نے فرمائش کیا کہ کولے والی فش جو ہے کھانی ہے، تو اس لیے سردی بہت ہے، ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی، اس لیے ہم بازار میں آئے ہیں تو یہاں سے 2 کلو فش بنوائی ہے اور بچوں کے ساتھ کھائیں گے اور سردی کا موسم جو ہے انجوائے کریں گے۔
शहरियों का कहना है कि हम अपनी फैमिली के साथ लियाकतपुर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट का रुख कर लिया है। सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए ग्रिल फिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। मछली सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सर्दी की शिद्दत को कम करती है। हम खुद भी खा रहे हैं और घर अपने बच्चों को भी लेके जा रहे हैं। बच्चों ने फरमाइश की थी कि आज हमने कोले वाली मछली खानी है। शहरियों का कहना है कि ग्रिल फिश का इस्तेमाल सर्दी में मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। इसमें प्रोटीन और काफ़ी विटामिन मौजूद हैं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, लियाकतपुर। और अब खबर शामिल करते हैं उस शरीफ से, जहां पर एक ही रात में 3 दुकानों से डाकुओं ने सफाया कर दिया। पुलिस चोरों के आगे बेबस नजर आई। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ने लगी हैं। चोरी की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद जानते हैं शहबाज शिकरानी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उस शरीफ में चोरों ने एक ही रात में 3 दुकानों का सफाया कर दिया। गाड़ी पर सवार चोरों ने खैरपुर डाहा रोड पर ख्वाजा मुदस्सिर रजा सिद्दीकी की दुकान का सफाया कर दिया। नकदी और कीमती सामान ले उड़े। इसके साथ साथ अहमदपुर शर्किया रोड पर 3 करियाना की दुकानों के ताले काटे और वहां से भी नकदी और सामान ले उड़े। चोरों की दुकान में चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में साफ देखा जा सकता है एक सफेद रंग की गाड़ी पर 4 चोर आए, दुकानों के ताले काटे और दुकानों से सामान और नकदी उठाकर आराम से फरार हो गए। जबकि दूसरी जानिब पुलिस रवायती दिलासों तक महदूद रह गई है। शहर में रोज डकैती और चोरी की वारदातों से शहरियों में शदीद खौफ व हिरास फैल चुका है। शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन टीम के साथ शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज, उच्च शरीफ। और अब रुख करेंगे हारूनाबाद का, जहां पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आम आवाम को रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया के लिए रियायती कीमत फराहम करने के लिए एक इदारा यूटिलिटी स्टोर के नाम से कायम हुआ। पाकिस्तान में मौजूद इस स्टोर पर छोटे बड़े शहर और कस्बे के मौजूद लोग आते हैं, मगर बदइंतज़ामी के बायस रोज़मर्रा की महंगी चीज़ें इन स्टोर्स पर दस्तियाब हैं, अक्सर नापईद हैं। मज़ीद जानते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। वतन अजीज में अवाम की सहूलत और इनको एशिया खुर्दनोश सस्ते दामों फराम करने के लिए हुकूमती अदारा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, जिसकी शाखें पूरे मुल्क में मौजूद हैं, जिसके जरिए सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी देकर चीजें अवाम को सस्ते दामों फराम की जाती हैं, जो इंतजामी लिहाज से बुरी हालत में पहुंच चुका है। अवाम को दी जाने वाली रायती एशिया मसलन घी, चीनी, दालें वगैरह अक्सर इन स्टोर से नायाब रहती हैं, जिससे हुकूमती सब्सिडी अवाम को मिलने के बजाय करप्ट अनासर की जेब में चली जाती है। आए रोज यूटिलिटी स्टोर की एशिया आम मार्केट में फरोख्त होते पकड़ी जाती हैं, मगर जुम्मेदारान को सजा ना होने से ये सिलसिला जारी रहता है। इससे ना सिर्फ हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी जाया होती है, बल्कि आम आवाम भी इन स्टोर से सस्ती एशिया खुर्दनोश खरीदने से महरूम रहते हैं। अवामी हल्के अरबाब इख्तियार से इन हालात का नोटिस लेकर इस्लाह हवाल का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। शहरनामे का सिलसिला जारी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। शहरनामे में एक बार फिर खुशामदीद। अब रुख करेंगे ननकाना साहिब का, जहां पर पंजाब बार कौंसिल ननकाना साहिब में चौधरी अनवर जाहिद की ननकाना बार आमद पर वकला की जानिब से जश्न मनाया गया और ढोल की थाप पर रक्स किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब बार कौंसिल ननकाना सीट पर तारीखी कामयाबी हासिल करने वाले 9 मुंतखब मेंबर चौधरी अनवर सुरा के एजाज में डिस्ट्रिक्ट बार रूम ननकाना में शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। चौधरी अनवर सुरा जब रैली की सूरत में कचहरी फाटक पहुंचे तो वकला की कसीर तादाद ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए इन्हें फूलों की हार पहनाए। इस मौका पर वकला ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। और जुलूस की शक्ल में चौधरी अनवर सुरा और साबका सदर बार ननकाना मोहम्मद अमीन भट्टी को बार रूम ननकाना लाया गया। तकरीब से खिताब करते हुए 9 मुंतखब मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी अनवर सुरा ने कहा कि वकला भाइयों के तावन से अल्लाह पाक ने मुझे मेंबर पंजाब बार कौंसिल मुंतखब होने की इज्जत बख्शी। मैं अपने वकला कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए हमेशा कोशा रहूंगा और नौजवान वकला के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करूंगा।
करूंगा। इनका मजीद कहना था कि ननकाना सीट पर पहली बार मेंबर पंजाब बार काउंसिल मुंतखब होना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, जिस पर मैं अपने वोटर्स और सपोर्टर का बेहद ममनून व मशकूर हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इनकी उम्मीदों और उम्मीदों पर पूरा उतरूं। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। और अब रुख करेंगे करोड़ पक्का का, जहां पर सर्दियों की शिद्दत में इजाफा होते ही फिश पॉइंट्स पर लोगों का रश बढ़ गया है और लोग मछलियां खाने में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन इसकी मांग में इजाफा हो गया है। इसी हवाले से करोड़ पक्का आपको लिए चलते हैं, वहां पर हमारे नुमाइंदे हसन खान मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही फिश पॉइंट पर जो है शहरियों का रश देखने को मिला है और फिश की मांग में भी इजाफा हो गया। इस वक्त भी मैं एक फिश पॉइंट पर मौजूद हूँ, मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी सर, सर्दियों के हवाले से जो है आप फिश के इस्तेमाल में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सर्दी की आमद है, बहुत बेहतरीन है, मरीजों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। चिकन से बहुत सस्ती है और अफादियत इसकी बहुत ज़्यादा है। कोई भी मरीज हो, डॉक्टर भी तजवीज़ करते हैं। मैं विलेज से आता हूँ, बल्कि 10 किलोमीटर, तकरीबन हफ्ते में 2 बार खाता हूँ मैं मछली तकरीबन। हाँ, ये मीडिया वालों की मेहरबानी चले, ये वो कर रहे हैं। रेट के हवाले से बहुत जायज़ रेट है, मुनासिब रेट है। जी, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि सेहत के लिए जो है फ़िश बहुत मुफीद है, इसलिए डॉक्टर हज़ात भी यही कहते हैं कि मरीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़िश खानी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया हसन खान। और यहाँ पर आपको आगाह करें कि जड़ावाला में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है, जबकि अगर बात करें लिया की तो वहाँ पर चोरी की बढ़ती हुई वारदातें सामने आई हैं और मजीद जो शहरी हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नजर आते हैं। मजीद किस शहर में क्या हुआ है, देखते हैं ये रिपोर्ट। पूरेवाला रुकन कौमी असम्बली चौधरी फकीर अहमद अराई, सैयद साजिद सलीम मेहंदी, साकिब खुर्शीद, साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी नजीर अहमद अराई और रुकन सूबाई असम्बली सरदार खालिद महमूद रोगर की जानिब से जाती उम्रा में मियाँ नवाज शरीफ व मियाँ शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। जड़ावाला जमीन में उगने वाली सब्जियां आसमानों को छूने लगी, सब्जी के खरीदार इंतहाई परेशान। अवाम की सब्जियों के रेट कम करने की अरबाब इख्तियार को पुरजोर अपील। और उधर लिया शहर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें। मोरखा 30/11/2020 8:20 पर अरसलान खालिद की मेहरान कार नंबर LY999 मॉडल 2015 बरंग सफेदुल कैफ पिज्जा शॉप के सामने से चोरी हो गई। मुकामी पुलिस मसरूफे कार्रवाई है। तहसील इंतजामिया मुरीदके ने नारंग मंडी में होने वाले अलमनाक हादसे से भी सबक ना सीखा। 15 इंसानी जानें जाया हो गई, मगर इंतजामिया टस से मस न हुई। मुरीदके नारंग मंडी समेत शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में LPG गैस की रिफिलिंग का काम सरेआम जारी और दूसरी तरफ शहर में जगह जगह मेन शहरों पर पेट्रोल मशीनें नस्ब। इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर। और चकवाल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने DC ऑफिस कम्प्लेक्स में अपने बेटे के साथ दूसरे बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए हिफाजती वैक्सीनेशन के कतरे पिलाए। हुकूमत पंजाब पोलियो के मुकम्मल खात्मा के लिए कोशा है और पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन राउंडर्स का तसलसल बरकरार रखे हुए है। अपने बेटे को हिफाजती वैक्सीन के कतरे पिलाकर जिला भर में बच्चों के वालिदैन को अमली तरगीब दी है। बच्चों के वालिदैन इंसदादे पोलियो वैक्सीन के बारे में हरगिज किसी गलतफहमी में मुब्तला न हो। हुकूमत की तरफ से जारी इंसदादे पोलियो मुहिम के हर राउंड में बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन इनके महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। बच्चों को पोलियो से बचाने का वाहिद तरीका हिफाजती वैक्सीनेशन है। माछीवाल मियाँ आसिफ महबूब के वालिद मियाँ मकसूद अहमद रब्बानी के भाई मियाँ महबूब अहमद रब्बानी मरहूम की चहलम के खत्म शरीफ की तकरीब रहमान टाउन माछीवाल में मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर करोड़ लालीसन में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ यासिर रिजवान ने अवाम के मसाइल सुने और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अमला को फौरी हदायत जारी की। और रायविंड कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर जिला इंतजामिया और टाइगर फोर्स के एहलकार फोटो सेशन की हद तक महदूद। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में एहसास कफालत प्रोग्राम में कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गयी। स्कूल में जमा होने वाले सैकड़ों खवातीन की लंबी लाइनें। और शुजाबाद और इसके मजाफाती इलाके सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग की लपेट में आ गए। अहले इलाका ने हाथों में बर्तन उठाकर सुई गैस हुकाम के खिलाफ एहतजाज करते हुए नारे लगाए।
मंचनाबाद के नवाही इलाके मच्छरपुरा में यासीन और उसके भाई मोहम्मद अरशद के साथ पेट्रोलिंग पुलिस कांस्टेबल सनाउल्लाह का जमीन का तनाजा चल रहा था। गुज़श्ता रोज कांस्टेबल सनाउल्लाह और इसका बाप मियां खान गुजर रहे थे कि यासीन और उसके भाई मोहम्मद अरशद ने इन पर डंडों और सोटों के साथ हमला कर दिया और इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे कांस्टेबल सनाउल्लाह शदीद जख्मी हो गया और इसके बाप मियां खान का बाजू टूट गया, जिन्हें फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंचनाबाद मुंतकिल कर दिया गया। घमंडपुर पुलिस के ASI गजनफर जोया का कहना था कि वो मुंसिफाना तफ्तीश कर रहे हैं, मेडिकल रिजल्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मुरीद के काला खताई रोड नारंग मंडी अलमनाक हादसा पेश आया है। हादसे में जाबाग 13 अफराद में से 8 अफराद की पहचान हो गई। पहचान होने वालों में एक ही खानदान और वैगन ड्राइवर शामिल हैं। 7 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा डेरा आराइया नारोवाल और ड्राइवर की शाहदरा लाहौर अदा कर दी गई है। 7 इज्तिमाई नमाज जनाजा में DCO असगर जोया और DPO गुलाम मुबशर मेकन की शिरकत। हादसा का मुकदमा थाना नारंग में दर्ज कर लिया गया है। और रुख करेंगे खानेवाल का। खानेवाल समेत पंजाब के दीगर कई शहरों में मेडिकल स्टोर की आड़ में अतायत का मकरू धंधा जारी है। देखते हैं वहां पर मौजूद नईम इकबाल की इस रिपोर्ट में। खानेवाल शहर और गिरदो निवा के देहाती इलाकों में जगह जगह मेडिकल स्टोर की आड़ में मिनी अस्पताल कायम हैं। मिनी अस्पतालों में अताई डॉक्टर शहरियों में मौत बांट रहे हैं, जबकि महकमा हेल्थ केयर कमीशन खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जिले इंतजामिया और हेल्थ केयर कमीशन की टीमें इन अताइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा दिखाई देती है। देहाती इलाकों में अताइयों की भरमार है। अब तक सैकड़ों शहरी गलत इंजेक्शन लगने की वजह से अतायत की भनट चढ़ चुके हैं, लेकिन अफसरान अपने ऑफिस से सब अच्छे की रिपोर्ट करने में मसरूफ हैं। ये प्रोफेशन वाइज ते मार्केटिंग करना मेडिसिन्स दी, हाँ जी, सुबह के टाइम क्योंकि मेरी अपना मैं एक फार्मास्यूटिकल्स का मैनेजर है और शाम नू मैं मेडिकल स्टोर है मेरे को बकायदा लाइसेंस दे नाल और जो लोग आते हैं उन्होंने कोशिश करी दी खिदमत करने की। असं क्योंकि 6-7 बजे आईदा वा, बस इन्ना ही काम है जी। मरीजों का तो कोई नहीं, मरीज तो साढ़े को कोई नहीं आते। मोस्टली लोग साढ़े को ने जिमें अक्सर लोग साढ़े इतने मशहूर डॉक्टर ने खानेवाल राणा इरफान साहब, रफ़ी साहब, कादरी साहब, क्योंकि मैं मार्केटिंग कर रहा मेडिसिन की और लोगों को क्या कल देने भी उतो जाके तुम कोई इंजैक्शन वगैरह लवाना है तो लवा सकते। बाकी साढ़ा मेडिकल स्टोर का काम है ज़्यादा। अताइयों ने अफसरान और सादालो अफराद की नज़रों में धूल झोंकने के लिए क्लिनिक्स के बाहर बोर्ड MBBS डॉक्टरों के आवेजा कर रखे हैं, जबकि एलोपैथिक की प्रैक्टिस यही अताई डॉक्टर खुद करते हैं, जो कि अक्सर शाम के औकात में अपने क्लिनिक खोलते हैं। इन अताइयों के क्लिनिक पर क्वालिफाइड डॉक्टरों का बैठकर मरीजों को चेकअप करना तो दूर की बात है, इन क्लिनिक्स की जानिब ये MBBS डॉक्टर देखना भी पसंद नहीं करते। अताइयों के प्रैक्टिस के बायस अब तक दर्जनों हंसते बसते घर उजड़ गए, मगर महकमा सेहत की टीमें अपने ऑफिस तक महदूद हैं। दावे बातें सब बेकार, देख ली सरकार मेडिकल की सूरत हाल। अब देखना यह है कि महकमा हेल्थ वाले इस मेडिकल के खिलाफ किस हद तक कार्रवाई करते हैं। और पिछले 2 साल से डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके कहने के मुताबिक कि 1 साल से ड्रग इंस्पेक्टर ने चेक ही नहीं किया। खानेवाल के नवाही इलाकों के अंदर अताई डॉक्टर अब भी उसी तरह से एलोपैथिक की बैठे हुए प्रैक्टिस करने में मसरूफ हैं, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। कैमरामैन मोहसिन रजा के साथ नईम इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। और खानेवाल की ही अगर बात करें तो वहां पर 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, जबकि यहां पर जो खाना बदोशी की बस्ती है वहां पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर एक इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। देखते हैं खालिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी और डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीराबाद शराजी ने जिला खानेवाल में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वजीर और डिप्टी कमिश्नर ने खाना बदोशों की बस्ती में बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर CO हेल्थ डॉक्टर मारिया मुमताज समेत दीगर महकमा सेहत के अफसरान भी इनके हमरा थे। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज 30 नवंबर से होगा। जिला खानेवाल में इंसदाद पोलियो मुहिम के
दौरान 5,52,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के हिफाजती कतरे पिलाए जाएंगे। सूबाई वजीर हुसैन जहानिया गर्देजी ने महकमा सेहत के अफसरान पर जोर दिया कि वो पोलियो मुहिम के दौरान मुकर्ररा अहदाफ को 100% यकीनी बनाए और इस बात का खास ख्याल रखें कि मुहिम के दौरान कोई बच्चा पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पीने से महरूम न रहे। डिप्टी कमिश्नर रागा जहीर अब्बास शिराजी ने कहा कि 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने वाली टीमों की जिले और तहसील लेवल पर सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी और कोताही के मर्तकब महकमा सेहत के अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खालिद चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। और अब रुख करेंगे हारूनाबाद का, जहां पर महंगी अशिया ने लोगों को इंतहाई शिद्दत का होशरुबा इजाफे ने होश उड़ा के रख दिए हैं। और यहां पर आपको बताएं, बढ़ती महंगाई ने करीब आदमी के घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। सब्जियां, फल समेत दीगर अशिया महंगी होने की वजह से उनकी खरीदारी मुश्किल होती जा रही है। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हारूनाबाद में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। एशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। फलों और दीगर एशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं। सब्जी, गोश्त और फ्रूट की खरीदारी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि कंट्रोल प्राइस कमेटियां गैर फाल हैं। सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में बैठे बड़े बड़े नजायज मुनाफाखोर मगरमच्छ आवाम को दोनों हाथों से लूटने के लिए अपनी मर्जी की कीमतों के रेट लिस्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से छोटे दुकानदार आवाम को महंगे दामों सब्जियां और फल फरोख्त करने पर मजबूर हैं। इस महंगाई के दौर में दिहाड़ीदार मजदूर तबके को घर चलाना मुश्किल हो गया है, जबकि चीनी, आटा, घी की कीमतें भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो रही हैं। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से फौरी नोटिस लेने और एशिया खुर्दनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। और बात करें कोट मिठन की, तो वहां पर वार्ड नंबर 9 मॉडल विलेज बस्ती में मियानी प्ले ग्राउंड उजड़ गया है। बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो गए हैं। कोट मिठन के वार्ड नंबर 9 मॉडल विलेज बस्ती मियानी का प्ले ग्राउंड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से वीराने का मंजर पेश कर रहा है। ग्राउंड में मॉडल विलेज की तामीर के वक्त ऑस्ट्रेलियन ग्रासी लगाई गई थी, जिसका अब कहीं नामो निशान तक बाकी नहीं रहा और उसकी जगह ग्राउंड में कांटेदार झाड़ियां उग चुकी हैं। इस प्ले ग्राउंड में माली की ड्यूटी सर अंजाम देने वाले सियासी आशीर्वाद की बदौलत घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड की ये हालत हो चुकी है। तो ये पीछे आप देख रहे हैं, ये प्लॉट जो है बिल्कुल बस्ती की प्रॉपर्टी है और पार्क बनाया गया था। अब जो है एक ही बंदे की इजारादारी है, ना इलाके के इस्तेमाल में ये प्लॉट, ना किसी बच्चों के इस्तेमाल में। तो हमारा मुतालबा है डीसी साहब से, डिप्टी स्पीकर से, एमपीए साहब से, एमएनए साहब से कि ये बस्ती की प्रॉपर्टी है, बस्ती को वापस की जाए, क्योंकि हमारे इलाके में जो है ऐसा कोई और प्लॉट है नहीं जहाँ पे जो है हम शादी गमी कर सकें। तो हमारा मुतालबा है कि बराए करम हमें बस्ती की प्रॉपर्टी, बस्ती को वापस की जाए। ये हमें दुख सुख के लिए दूसरों का प्लाट पे हम बैठे हुए हैं। ये नहीं हो रहा था, घास वास नहीं था तो हमने इधर काम कर लिया, नहीं तो हम तो बहुत मुश्किल में है सर, बहुत परेशान है। बस्ती मियानी के बच्चों को हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल सेंटर, तालीम और तरबियत के लिए TCF स्कूल, जबकि बच्चों में खेलों की सरगर्मियां उजागर रखने के लिए ये प्ले ग्राउंड तामीर किया गया था। खेलों के साथ साथ ये ग्राउंड 267 घरों पर मुश्तमिल इस मॉडल विलेज की शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में इस्तेमाल होने वाले इस ग्राउंड पर वोकेशनल सेंटर पर इजारादारी कायम करने वालों की बदौलत प्ले ग्राउंड के साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तक नाकारा हो चुका है, जिसके खिलाफ बस्ती के नौजवान खासे नाराज दिखाई देने लगे। कोई खिलौने, कोई झूले, कोई चीज नहीं रह गई। ये आपके सामने करप्शन का मंजर है इसमें, और माली भी लगे हुए हैं और गार्ड भी लगे हुए हैं। कोई कुछ पता नहीं है कि भैया क्या हो रहा है, क्या नहीं। चेक करें, इनके रिकॉर्ड चेक करें, तनख्वाहें, मुलाजिम है, गार्ड है यहाँ पर। आपका मुतालबा क्या है? बहैसियत बस्ती मियानी यूथ विंग का आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि ये ग्राउंड हमें वापस किया जाए हमारी बस्ती के लिए। बस्ती के लिए बच्चों को खेलने के लिए जो है झूले लगाए गए थे, वो झूले दोबारा लगाए जाए। और ये सफाई जो देखो कितनी ऑस्ट्रेलिया से ग्रासी मंगवाई गई, आप देखो ये जंगलात का मंजर पेश कर रही है।
ये क्या करें, हम कहाँ खेलें, बच्चे हमारे कहाँ खेलें और हम कहाँ क्या करें जा। तो यहाँ के अहले इलाका ने और यहाँ की यूथ विंग ने यही मुतालबा किया है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और हुकूमत पंजाब से कि इसको जो है बस्ती मियानी की कस्टडी में वापस दिया जाए और इसको अलग गेट एक बनाकर दे दिया जाए जो वोकेशनल और TCF स्कूल से अलहदा हो। तो ये अकब की जानिब में यहाँ पर एक गेट नस्ब किया जाए ताकि यहाँ पर ग्राउंड भी आबाद हो जाए, यहाँ पर नौजवान जो है वो खेल कूद कर सकें, खेलों की सरगर्मियों को जो है वो तेज़ कर सकें। इसके साथ साथ जो शादी गमी की जो तकरीबात होती हैं उसके लिए भी बस्ती मियानी के पास जो है कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये सुख चैन मॉडल विलेज की प्रॉपर्टी है जो वो मुतालबा कर रहे हैं कि वो हमें वापस की जाए और इसका अकब की जानिब पे एक गेट नस्ब किया जाए जिस जो है यहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ भी बहाल की जा सकें और यहाँ पर जो शादी की तकरीबात हैं या जो दीगर तकरीबात हैं वो भी यहाँ पर हो सकें। कैमरा टीम के साथ डियामिर तईम, मेट्रो 1 न्यूज़, राजनपुर। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।